انجم تخلص رکھا تھا کسی زمانے میں. انجم ختم کب کیا؟ جب میں نے محسوس کیا کہ میں نے انجم تخلص تو رکھ لیا لیکن ڈاکومنٹری انجم نہیں تھا. اس کے بعد میں نے انجم ختم کر دیا, صرف محمد رفیق رہ گیا. ایئر فورس میں نوکری کی 25 سال, بڑی باعزت اور بڑی باوقار ٹائم گزارا ہم نے یہاں. اس سال یہ جو پی ڈی ایم نے کھچڑی بنائی, بس اللہ ہی حافظ ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال حالات بہت خراب ہیں. 17 سال رہے سعودی عرب میں, تقریباً 19 سال. 19 سال. عمریں کتنے ادا کی؟ الحمدللہ 2 حج کیے اور عمروں کا کوئی شمار نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں یہاں شورکوٹ میں, شورکوٹ کینٹ. ہمارے دوست ہیں, پرانے دوست محمد رفیق صاحب. یہ سعودی عرب میں ہوتے تھے. سعودی عرب سے پاکستان آتے ہیں اور پاکستان سے تھوڑا سا عرصہ گزارنے کے بعد سعودی عرب چلے جاتے ہیں. محمد رفیق صاحب سے ایک عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے. محمد رفیق صاحب کبھی محمد رفیق انجم ہوا کرتے تھے, آج کل ان کا نام ہے محمد رفیق رفیقی. تو انجم سے رفیقی کیسے بن گئے؟ انجم تخلص رکھا تھا کسی زمانے میں, ویسے مطلب مزاح کے طور پہ, یا جس طرح کو 7 دوست تھے, کسی نے کچھ 80 رکھا, کسی نے کچھ رکھا, میں نے بھی ایڈ کر دیا بھی چلو جی میں بھی انجم ہوں. لیکن انجم ختم کب کیا؟ جب میں نے محسوس کیا کہ میں نے انجم تخلص تو رکھ لیا لیکن ڈاکومنٹری انجم نہیں تھا. اچھا. ڈاکومنٹری صرف محمد رفیق تھا. تو اس کے بعد میں نے انجم ختم کر دیا, صرف محمد رفیق رہ گیا. ٹھیک ہے. تو جو رفیقی والی بات ہے وہ رفیقی کی مطلب اس طرح ایڈیشن ہوئی میرے نام میں کہ میں ڈیورنگ سروس پاکستان ایئر فورس میں نے 25 سال نوکری کی. تو ڈیورنگ سروس میں تقریباً 9 سال یہاں بیس شورکوٹ کینٹ میں جو بیس ہے, پی ایف بیس رفیقی کے نام پہ مشہور ہے. اچھا. تو میں نے یہاں پر 9 سال گزارے اور بہت اچھے ٹائم گزارا. تو اس دوران بس وہ میرے نام کے ساتھ ملتا تھا. تو کسی نے مجھ سے پوچھا ہاں بھی کہاں سے آپ؟ میں نے کہا رفیق فرام رفیقی. وہ ایسے میرے نام کے ساتھ لگا کہ وہ رفیق رفیقی بن گیا. بعد میں نے فیس بک بنائی یا واٹس ایپ بنایا تو وہاں پر میں نے اپنا نام جو ہے نا صرف رفیق نہیں لکھا, رفیق رفیقی لکھنا شروع کر دیا. اچھا, سعودی عرب آپ کا کیسے جانا ہوا؟ جب ایئر فورس سے ریٹائر ہوا تو ظاہر ہے کوئی روزگار کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے. ایئر فورس میں نوکری کی 25 سال, بڑی باعزت اور بڑی باوقار مطلب ٹائم گزارا ہم نے یہاں پہ ایئر فورس میں. لیکن جب ایئر فورس سے نوکری ختم ہو گئی تو پینشن اتنی نہیں تھی کہ مطلب میرے اور میرے بچوں کے خواب پورے ہو سکتے. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچہ میرا 1 بیٹا 3 بیٹیاں. اچھا. بیٹے کا کیا نام ہے, کیا کرتا ہے؟ محمد نعمان ہے. اچھا. اس کے بعد بیٹی ہے زنیرہ, اس کے بعد عائشہ اور اس کے بعد ماہم. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے یہی سوچا کیونکہ پاکستان میں کاروبار کے لیے سرمایہ چاہیے, ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا. اچھا. نعمان کیا کرتا ہے؟ نعمان آج کل گورنمنٹ ٹیچر ہے. اچھا. تو سعودی عرب بالکل آسانی سے آپ کا جانا ہو گیا, آپ اسی میں گئے جو آپ کا شعبہ تھا ایئر فورس میں, یا کسی اور شعبے میں گئے؟ نہیں, میں پرائیویٹ طور پہ گیا. میرا بھائی میرا پہلے وہاں پر ایک تھا, وہ وہاں پہ پہلے سے سیٹل تھا, تو میں اسی کے پاس گیا. کام ہمارا اپنا ہے. وہاں پر میں نے یہ بلڈنگ کنسٹرکشن کے کام سے مطلب میں اپنا کام کا آغاز کیا. اچھا. پھر سیٹلائٹ کا کام شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو سیٹلائٹ کے کام سے اور بلڈنگ کنسٹرکشن میں خاص طور پر الیکٹریشین کے طور پہ وہاں پہ میں نے اپنا سیٹ اپ کیا. اور الحمدللہ میرا خیال ہے میں 2004 میں گیا تھا اور ابھی دیکھے 2023 آ گیا, ابھی تک وہیں ہوں. ابھی بس. اچھا. وہ جاتے ہوئے کوئی مشکلات ہوئی یا پھر یہ ہے کہ آپ پاکستان سے گئے اور وہاں پہ آپ نے سیٹلائٹ کا سلسلہ نہیں, شروع کر مشکلات دیا؟ وہاں پہ آتی ہیں, کوئی بھی ہے. آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ میرے ساتھ مشکل کوئی نہیں آئی, جو صحیح پوچھے تھے. اچھا. کیونکہ بھائی وہاں تھا. سب سے پہلے مشکل یہی آتی بھی جا کر ٹھہریں گے کہاں پہ. بھائی آلریڈی وہاں پر رہ رہا تھا تو میں اس جو کے کام بعد کا آپ نے سلسلہ شروع کیا وہ جاتے سیٹلائٹ کا شروع کر دیا یا کیا؟ نہیں, سیٹلائٹ کا کافی دیر بعد سب شروع کیا. کیونکہ وہاں پر سعودی عرب میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں, کام کرنے سے پہلے آپ کو سعودیہ کی زبان 100% نہیں تو اتنی زبان ضرور آنی چاہیے کہ آپ ان کو بات سمجھا سکیں, ان کی سن سکیں. تو 5-6 مہینے لگ گئے زبان سیدھی کرتے کرتے. زبان سے جب کچھ بات زبان سیدھی کرتے کرتے 5-6 منٹ, اور کام سیدھا کرتے کرتے کتنا اگر یہ صحیح پوچھیں تو انڈیپینڈنٹ جب میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میں انڈیپینڈنٹ کام کر سکتا ہوں تو وہ 2 سال بعد.
अच्छा ठीक है। हाँ, पहले 2 साल मतलब क्योंकि एक्चुअली बेशक मैं टेक्निकल माइंड और टेक्निकल हैंडेड आदमी था, लेकिन वहाँ पे काम की नीयत कोई और थी। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक का काम करते थे, शॉप्स में काम करते थे, जहाज़ों पे काम करते थे। वहाँ पर तो ये चीज़ नहीं थी। तो आइडिया ज़रूर था, ये था कि हमें टेक्निकली आइडिया होने की वजह से काम को एक दफ़ा देख लेते थे, एक दफ़ा कर लेते थे, दोबारा फिर पूछना नहीं पड़ता था। ठीक है। इसी नज़रिए से हम करते रहे, शुरू करते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर मतलब अपनी अब कस्टमर बनते गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो सऊदी अरब से परमानेंट पाकिस्तान कब तक आने का प्रोग्राम क्या होगा? तकरीबन मेरा ख्याल है शायद 1 साल के मतलब बाद में वापस आ जाऊँ, लेकिन ये 100% नहीं है। हो अच्छा। सकता है मतलब अच्छा, हालात के आपने ये भी बताया था कि आपका प्रोग्राम तो था कि इसी साल आपने आ जाना है, फिर आपने एक्सटेंड कैसे कर लिया? बस थोड़ा सा कह सकते हैं कि कुछ घरेलू सेटअप की वजह से बेटी मेरी अभी मैंने 3 बच्चों की शादी कर दी, 2 बेटियों की 1 बेटे की। तो अभी मैंने यही सोचा कि जब तक इस बेटी की शादी नहीं होती मैं अभी वहाँ रह लेता हूँ। अच्छा। क्योंकि आपको पता है इस वक्त, और स्पेशली सबसे ज़्यादा वहाँ रहने की वजह जो स्पेशली इस साल जो पाकिस्तान में महंगाई का सुनामी आया, उसकी वजह से प्रोग्राम जो है ना वो चेंज हुआ। क्योंकि जो चीज़ मेरे हिसाब से अगर मैं एक 10 लाख में कर सकता था, अभी मुझे लग रहा है कि मेरे पास 20 लाख होंगे तो मैं करूँगा। वहाँ पे क्या सूरत है महंगाई की? महंगाई है वहाँ पे भी, अच्छा, तो पाकिस्तान के मुवाजना कैसे लेकिन करें? यहाँ पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा होगी। हमें महसूस क्यों नहीं हो रही कि मिसाल के तौर पर हम पहले 1,000 रियाल पाकिस्तान भेजते थे, हमें किसी ज़माने में 15,000 पाकिस्तानी मिलता था, फिर 25,000 हो गया, फिर 30,000 हो गया, जिस तरह रेट बढ़ता गया। तो अब सूरत हाल ये है कि हम 1,000 भेजते हैं तो हमें यहाँ पर 70,000 मिलता है। अच्छा। हमें महंगाई महसूस, जब तक हम वहाँ पर हैं हमें महंगाई महसूस नहीं हो रही, ठीक। लेकिन यहाँ पे आके जब हम पाकिस्तान में अवाम की हालत देखते हैं, महंगाई की सूरत हाल देखते हैं, यकीन जाने मैं अपने हिसाब से आज से 1 साल पहले जब गया, जो मैं अपने हिसाब से 400 की चीज़ लेता था वो भी 1,000 की मिल रही है। अच्छा, पाकिस्तान में ना हम लोग ऐसे हैं कि किसी न किसी सियासी पार्टी के साथ वो एफिलिएशन है या हमदर्दियां हैं। आप चूँकि सऊदी अरब में बैठे हैं, पाकिस्तान से बहुत दूर बैठे हैं, वहाँ पे एक अरसे से हैं, तो आपसे हम आवाज़ना चाहेंगे कि इस हुकूमत का और इमरान खान की हुकूमत का, आपसे हमें ये उम्मीद है कि आप गैर जानबदारी से मुवाजना करेंगे कि इमरान खान से मैं अगर हकीकी बात बताऊं, मैंने वोट नहीं दिया इमरान खान को, मैंने नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया, लेकिन इमरान खान से हमारी और बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आम लोगों का ख्याल यही है कि इमरान खान उन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सका। वजह क्या थी? उसकी कुछ मजबूरियाँ थी या उसने वैसे सब्ज़ बाग दिखाए थे लोगों ठीक को। है। इस वजह से इमरान खान का 100% हम उनके मतलब मैं नहीं कह सकता कि इमरान खान ही हमारा आइडियल है, लेकिन इस साल ये जो पीडीएम ने खिचड़ी बनाई, बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है, कोई समझ नहीं आ रही, हमें खुद समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या वाकई उनके कंट्रोल में ये चीज़ नहीं है कि इतनी ज़्यादा महंगी? उनको हर बंदा समझ रहा है कि जितनी महंगाई कर दी, जितनी आवाम को उन्होंने तंग कर दिया, आइंदा वोट उनको नहीं मिलेंगे, लेकिन वो नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है उनकी मजबूरी हो, जिस तरह वो बता रहे हैं कि जी इमरान की हुकूमत ने ऐसे ऐसे मुआहदे किए जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ता है। हो सकता है ऐसे हो, हमें तो नहीं पता, हम तो जो अखबार में या टीवी चैनल में सुनते हैं हम उसको मान लेते हैं। बहरहाल हालात बहुत ख़राब है। अच्छा, वो देखें, आपकी बात मैं इसको इंडोर्स करता हूँ कि हो सकता है कि इन लोगों को ये है कि पिछली हुकूमत ने ये किया हो, लेकिन पिछली हुकूमत ने इतना ज़्यादा तो नहीं कर दिया था कि आपके पास महंगाई इतनी, पेट्रोल डबल हो गया, डॉलर की कीमत डबल हो गई। मैंने आपको पहले बोला ना कि इस हुकूमत ने स्पेशली इस साल में बस रगड़ा निकाल दिया हुकूमत का, अवाम का रगड़ा निकाल दिया। हम खुद तवक्को नहीं कर रहे थे। हमारे उस वक्त जब इमरान की हुकूमत गिरी ना, तो आम लोगों का ये नज़रिया था कि, और आम आवाम ये कह रहे थे भी इमरान ने महंगाई की, इमरान ने ये किया वो किया, अब ये आ गया, इमरान से जान छूट गई। लेकिन जिस दिन इमरान खान की हुकूमत गिरी, इमरान खान का ग्राफ अप होना शुरू हो गया, इनका ग्राफ दिन ब दिन डाउन होना शुरू हो गया, और लगातार यही सिचुएशन जा रही है महंगाई की वजह से। महंगाई मेन चीज़, महंगाई और कुछ नहीं। अब आपको क्या है कि मतलब जी वो GDP इतना है, वो जी सियासत में हमारे ताल्लुकात उसके साथ इतने हैं, हमारे मतलब अमूर खारजा के ताल्लुकात ये। आवाम को, आम आवाम को 80% आवाम को इस चीज़ से कोई तल्लुक नहीं। 80% आवाम को यही है कि पेट्रोल कैसे जा रहा है, हमें आटा कैसे मिल रहा है, हमारी चीनी का क्या भाव है।
मुल्क में महंगाई का क्या रेशो है, जी 80% अवाम हमारी जो है ना, उनका जो है मेयार यही है। ठीक है। जब उनको हर चीज़ मुश्किल में मिल रही है तो वो यही कहेंगे कि हुकूमत नाकाम होगी। अच्छा, आप 16-17 साल रहे सऊदी अरब में, तो तकरीबन 19 साल। 19 साल उम्र कितने अदा की आप? अल्हम्दुलिल्लाह 2 हज किए अच्छा जी, और उम्रों का कोई शुमार नहीं है। मतलब हर साल जब से गए हैं, साल में 2 उम्रें भी कर लेते हैं, 3 भी कर लेते हैं, 4 भी किए हैं। अच्छा यहाँ पे आप सेटल हैं वहाँ पे, वहाँ से मदीना कितना दूर है, मक्का कितना दूर है? तकरीबन 450 किलोमीटर मदीना है। अच्छा जी, मक्का मेरे घर से चल के हरम पाक 100 किलोमीटर है। ठीक है। तो वहाँ तो उम्रा तो फिर आप, इसका मतलब है कि वो, मैं बोला उम्रे की कोई टेंशन नहीं। अच्छा तो घर वालों को हज उम्रा? मैंने अपनी वाइफ को हज करवाया। ठीक है। वाइफ का क्या नाम आपने? वाइफ मेरी का नाम है कुलसुम अख्तर। कुलसुम। अच्छा उनको हज कराया मैंने, और 2 दफ़ा मैं उनको 3-3 महीने के लिए विजिट वीज़े पे बुलाया। ठीक है। उस विजिट के दौरान उसने भी काफ़ी सारे उम्रे किए। पिछले महीने मैंने अपने बेटे को, वो कह रहा था मुझे उम्रा कराया, मैंने उसको बुलाया, उम्रा कराया। पिछले महीने वो उम्रा करके आया वहाँ से। ठीक है। तो बेटियों को नहीं गिराया? बेटियों को नहीं कहा। बेटी एक्चुअली ये है कि बेटी जो ही तलीम से फारग हुई उसकी शादी कर दी, जो ही तलीम से फारग हुई उसकी शादी कर दी। ठीक है। तो इसलिए वो उनको मौका ही नहीं मिला। बेटी मतलब पहली बेटी जो बड़ी बेटी थी वो दिसंबर में पास आउट हुई वहाँ से, अच्छा डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रही थी। मार्च में उसकी शादी हो गई। ठीक है। दूसरी इसी तरह जब उसका कोर्स ख़त्म हुआ तो अगले 2 महीने बाद उसकी शादी हो गई। ठीक है। एक बेटी भी पढ़ रही है, तो इसलिए अभी उनको मैं ये इस साइड पे नहीं गया तो ना ही करवाया। अच्छा आप सेटल तो यहाँ पे हैं शोरकोट कैंट में, आपका बेसिकली बुनियादी गांव आपका कहाँ पे है? तहसील गोजरा, ज़िला टोबा टेकरी में हमारा गाँव है जो हवाई है। तो उस गांव में अभी हम मतलब मेरा भाई छोटा जो मेरे साथ सऊदी अरब है वो वहाँ पर रहता है, उसके बच्चे वहाँ पर रहते हैं। ठीक है। बाकी हम 5 भाई हैं, 5 भाइयों में कोई भी नहीं उधर आता। एक कराची सेटल है, एक मुल्तान सेटल है, एक फैसलाबाद, मैं यहाँ ठीक हूँ है। अपने रोजगार के सिलसिले में। रफीक साहब आपके साथ हमारी जो गुफ्तगू हुई है ना, इसका एक तो मकसद ये था कि आपका पैगाम हम लोगों तक भी पहुंच जाए और आपके बारे में आपके जो दोस्त हैं उनको भी पता चल जाए कि चलो जी, रफीक जो भी साहब आपके पसंद से मैं यही कहूँगा कि जो भी मेरे दोस्त, स्पेशली वो दोस्त जो एयरफोर्स में किसी भी वक्त मेरे साथ रहे हैं, मेरी तरफ से उनको सलाम। याद आते हैं। अच्छा आपका एयरफोर्स का नंबर आपका क्या है? टेलीफोन नंबर मेरा जो परमानेंट सऊदीया में चल रहा है वो यही है 056-950-3045। हाँ, जिसने रब्ता करना हो रफीक साहब से इस नंबर पे रब्ता बिल्कुल करें, इस व्हाट्सएप नंबर इसी से पे है रफीक सऊदीया का साहब का। कोड डायल करें इस नंबर पे। इसी पे मेरा व्हाट्सएप है, इसी पे मेरा फेसबुक है, इसी पे मेरे नाम है। पिछले 19 साल से यही नंबर परमानेंट मेरे पास है। चलो ठीक है, वो बहुत शुक्रिया।